229 विकेटें लिए, 101 ओडीआई में 195 विकेटें लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर सारे भारत को मालूम है। सेमीफाइनल मुकाबला अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। बैक टू क्रिकेट नाउ। रिमाइंड यू, Firoz Warrior won the toss, elected field first. Is going to be Rahul Lawar and Datta Pawar. These two are the recognized opener of Shri Tej Sports Academy. Is going to be Sumit Aute, open the bowling attack. There is a short thurman, deep pitch gully, cover point, short fine leg, backward square leg, wideish mid-on, inside the ring, long off right on the boundary, and one man right patrolling on the mid-wicket boundary. First ball from Sumit Aute. दत्ता पवार ऑन स्ट्राइक। टाइमर शुरू हो चुका है। 25 मिनट में पहले 5 ओवर और छठा ओवर 30 मिनट के अंदर। दत्ता पवार फेसिंग आउटे। फर्स्ट बॉल ऑन द राइज प्लेट, इज इन द एयर, मैन अंडर इट, फाइनली टेकन बाय द डीप मिड विकेट फील्डर एंड दत्ता पवार इज आउट फॉर डक। Raj taken a very good catch and Prashant, no doubt at all. Look at that. वाह ताज नहीं, वाह राज। कमाल कर रहे हैं आज राज। देखिए दत्ता पवार का जो विकेट है, खास करके इससे पहले भी जो आउट हुए थे ना, वही क्षेत्र है और शॉट भी वही है। और जब एक बार इससे पहले थोड़ा डांसिंग डाउन द विकेट आ गए थे, अभी फिलहाल कदमों का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन उसी क्षेत्र में उनका विकेट गिर गया था, वहां एक बार फिर कैच लपका गया था। Shri Tej Sport in deep trouble now. Datta Pawar is set back to the pavilion for duck, not for one. Sumit Aute claimed the breakthrough here. The last match of night between Iraqi Warriors and winner of this game. New batsman, number 3 position. Ankush Lohar. 2 Lohar on the middle. Rahul Lohar, in-form batsman, and Ankush Lohar. A fantastic atmosphere of cricket. Cool climate in Dadoji Kondev Stadium, Thane. Sumit Aute, up to the wicket now. Both this time beauty. Beauty just past the bat. What a ball indeed. A length ball and no foot movement behind the stroke. Lack of footwork. In mobile, network is compulsory, and in cricket, footwork is compulsory. Lack of footwork. Look at that. Lovely ball indeed. Fair amount of swing in the air and of the surface. Sumit Aute. Another fine delivery. What a bowling. What a magnificent, fast and furious bowling from Sumit Aute. This is the quality bowling. Once more. V moment to the batsman. Sharp in cutter for left-handed outgoing delivery. And his score remaining not for one.
Sumit Aute bowling in channel now. Their return now up to the wicket. Both this time soft and push. They threw for one. Ankush Lawar off the mark with single, and his score is 1 for the loss of 1 wicket. Very shaky start. Now in-form batsman Rahul Lawar facing Sumit Aute. I think Firoz Warrior changed their play 11, and that's the view of the drone cam from tenniscricket.in. Aute turn. Ball this time control pull shot. Ball is racing very rapid. What a effort! What a effort! What a effort from Raj. One of the great outfielder, saving 2 runs for his side. This is the fantastic effort. Rahul of the mark with 2. Look at that. Look like a South African fielding. So Rahul Lohar of the mark with 2. His score is 3 for the loss of 1 wicket. So far, very economical bowling in mandatory power play from Sumit Aute. This time played on the rise, typical power play stroke. And ball is racing all the way to the long off for 4. एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 7, विकेट गिरा है 1। फिर राहुल लोहार ने बता दिया है कि उनका क्लास और उनका फॉर्म लगातार जारी है। पहले इनिंग में 32 बनाए, दूसरे में 21 बनाए, अब 2 गेंदों में 6 पे खेल रहे हैं। ये सही है, 100 सुनार की 1 लोहार की। ये लोहार वैसे ही लग रहे हैं, इनकी कलाइयां भी लोहे की है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है ऐश्वर्या सुर्वे को। देखिए ऐश्वर्या सुर्वे का लंबा कद है और उनकी गेंदें भी थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेती है। अभी तक बहुत कामयाब रहे नजीब मुल्ला ट्रॉफी में। आज रात का आखिरी मुकाबला इराकी वॉरियर और इस मैच की विजेता टीम। खेल की शुरुआत होती हुई ऐश्वर्या, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, व्हाट अ कैच। कपिल देव की याद ताजा होती हुई पीछे भागते हुए बहुत बढ़िया कैच। इश्तियाक शेख ने इस कैच को लिया है। बहुत मुश्किल रहता अंडर फ्लड लाइट, आप गेंद के ऊपर पीछे से भाग रहे हो। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर श्री तेज स्पोर्ट्स। कह सकते हैं कि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं, एंजॉयमेंट होता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। नजीब मुल्ला क्रिएट द हिस्ट्री। टेनिस क्रिकेट को फर्श से उठाकर अर्श पे रख दिया है। और ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि एक अलग ही एटमॉस्फेयर, एक अलग ही मजा आ रहा है। देखिए हमारे ओपन क्रिकेटर्स कितने शार्प हैं, बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट किया है। ड्रोन कैंप
का जो इस्तेमाल किया है tenniscricket.in ने लाजवाब। tenniscricket.in को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। ऐश्वर्या की गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, लेन गेंद थी, विकेटों के ऊपर से चली गई अमित तांबे के। ये देखिए हल्का सा मोमेंट भी रहा था, लेकिन आगे रखी हुई गेंद थी। ऐश्वर्या सुरवे छोटे रनअप से तांबे को ऑन ड्राइव किया, आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे सरकता हुआ 8 रन 2 विकेट। श्रीतेज 11 एकेडमी, ये खिलाड़ी बहुत खास है। चबाने का उनका चिंगम अंदाज बिल्कुल रिकी पॉइंटिंग से मिलता जुलता। पहले मैच में 32, दूसरे मैच में 21 और अब खेल रहे हैं 6 पर। बैकफुट पे गए, पंच किया है, कमाल का स्ट्रोक है, थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश, जगह दी थी वहां पर सुरवे ने हाथ खोलने की। सिद्दीक सर देखिए इस खिलाड़ी के पास बहुत समय है, एक बार अच्छी पोजीशन में वो खड़े रहते हैं और एक बार फिर इनको देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर घेरे, थोड़ा सा पीछे चले गए और उनको मालूम है कि पॉइंट और कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, तो चतुराई के साथ पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। एक अच्छा स्ट्रोक था, सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए ये शॉट के लिए समय और इनका समय भी अच्छा चल रहा है। ये आप देख सकते हैं ड्रोन कैम की मदद से दादूजी कोंडदेव स्टेडियम को चांद की तरह चमकता हुआ, और ये स्टाइल में रहने का। इस मर्तबा चॉप कर दिया है, दिलकश स्ट्रोक है, जाजिबुल नजर शॉट, केवल फ्लैशी चॉप कर दिया था गेंद को पॉइंट के ऊपर से, एक और चौका। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की थी ऐश्वर्या सुरभि ने, लेकिन एक्शन रिप्ले में देखे ऑफ स्टंप के बाद शफल में और फॉलो करने का भी प्रयास किया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो पुलटॉस गेंद थी, बल्ले का चेहरा दिखा इस गेंद को और बढ़िया तरीके से जो पॉइंट का खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने। मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद ताज़ा होती हुई शॉट के पीछे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है। ये दिलफरेब नज़ारा, आंखों में समा जाने वाला नज़ारा आप देख रहे हैं tenniscricket.in के ड्रोन कैम के माध्यम से। क्योंकि देर रात हुई है, बिल्डिंग की जो लाइटें हैं वो बुझ चुकी है। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग अभी तक राहुल लोहार ने प्रभावित किया। पहले मैच में 32, दूसरे मैच में 21। इस मुकाबले में देखिए इस ओवर में खास करके ऐश्वर्या सुरभि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, उनके खिलाफ बहुत बढ़िया बल्ले। पहले ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर से खेलता, ये लेग स्टंप के ऊपर थी और फुल टॉस गेंद थी और इसके ऊपर प्रहार किया। शानदार बल्लेबाजी रही है राहुल लोहार द्वारा। स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट इनिंग इस मुकाबले में खेल रहे राहुल लोहार। 100 सुनार की और 1 लोहार की। देखिए ये अरशद उंडो को दिखाया जा रहा है, एक ऐसा बैट्समैन जिसके पास 2 मरतबा 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड है। 2019 के केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे। अरशद उंडो के पास लंबे सिक्सर लगाने के कई रिकॉर्ड्स हैं। वाड़ा के क्रिकेट को दुनिया में पहुंचाया हुंडो ने, 22 रन 2 विकेट। टू आफ्टर 2। देखिए आंकड़ों का खेल है, लेकिन आंकड़े भी बहुत मायने रखते हैं। आप गणित में हिसाब में 1 में से 1 निकालो, 1 बचता है। प्रेम में से 1 में से 1 निकालो, 0 बचता है। स्विच हिट किया है, ये जाएंगी मैदान के बाहर। सजनी चली साजन के घर, 6 रन। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। वैसे अगर देखें तो बल्लेबाज अमित तांबे थोड़ा चोटिल है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि घायल शेर बहुत खुकार होता है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर तब तक बल्लेबाजी की और पॉइंट के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था।
सबसे बड़ी बात कि हाथ में चोट है और फिर रिवर्स आप खेलते हैं, तो ये बताता है कि आपका टैलेंट कितना ऊपर है। तांबे बिल्कुल तांबे की तरह गर्म हुए हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित आवटे, ये अख्तर शेख। देखिए राबोरी में नजीब मुल्ला जिस तरह सियासत में और फलाह बहबूद में फेमस है, क्रिकेट का ये वो चेहरा है जिसने राबोरी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। इस मरतबा फिर रिवर्स की कोशिश, अपील और आउट। खराब शॉट सिलेक्शन। बल्लेबाज अमित तांबे का एक एंड पर बल्लेबाज राहुल रोहाल बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, उसके बाद में रत्नात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश की। सामने सुमित आउटे जैसे एक बार फिर शातिर गेंदबाज है। खराब शॉट बल्लेबाज अमित तांबे का, उनका विकेट गिर गया है। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल आ रहा है और अब क्या नरसिंह को मौका मिलेगा वो देखना बहुत जरूरी। एक बड़ा स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था, लेकिन उसके बाद में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। लेकिन इस मैच में सुमित आउटे कमबैक कर रहे हैं। ये हमारे दर्शक देर रात एंजॉय करते हुए 28 रन 3 विकेट। नजीम मुल्ला ट्रॉफी की अगर ग्रामीण फॉर्मेट की हम इनिंग पकड़े तो सबसे अच्छी इनिंग 2009 में अख्तर शेख ने खेली थी सेंट्रल ग्राउंड में मेगा वाकबिल के सामने। हालांकि बहुत ज़बरदस्त वाकबिल का भी परफॉर्मेंस रहा था। नरसिंह आए, सामना करें आउटे का। खींच के मारा है, सीधी गेंद निकल गई है। 6 रन। गेंद बल्ले से निकली तो बाउंड्री पे नजर आ रही, इसे कहते हैं पावर बैक स्ट्रोक। और देखिए ये इस तरह ही खेलते हैं, मतलब एक बार फिर वो सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहते। देखिए ये पैरों पर गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया था और जल्दी बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते 6 रनों के लिए। ये मैच रंग ला के रहेगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल लोहार बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद कप्तान ने आदेश दिया है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। बहुत अच्छा अंदाज है। उन्होंने इनर ग्लोव्स भी पहने और इनर भी पहना है। नरसिंह पालम पल्ले, इनकी बल्लेबाजी अभी तक गेंदबाजों के पल्ले नहीं पड़ी है। अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा है, स्टैटिश लॉन्ग ऑफ है। 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 35 रन 3 विकेट। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट स्कोर देखते हैं तो लगभग 70 हो जाएगा, जो एक अच्छा टोटल है देर रात। ये खिलाड़ी बहुत खास है आज के दिन में। राहुल लोहार, भरत लोहार बहुत बड़ा नाम रहा टेनिस क्रिकेट में। अच्छी गेंद, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, पुश किया डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन। शोरी लहर की खासियत है वो बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, उसके साथ अगर देखकर तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जो कि कभी के जो क्रिकेटर है वो बल्लेबाज जो है उनको लाइफ लाइन को नहीं भूलना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से परिपक्व खेल का परिचय दे रहे हैं इस वक्त शुरू लोहार। देखिए अच्छी गेंद पर आपको सिंगल ही लेना चाहिए। माना कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, लेकिन क्रिकेट की लाइफलाइन तो सिंगल डबल है। आप 4 गेंदे डॉट खेलते हैं, एक चौका लगाते माने नहीं रखता है। 36 रन 3 विकेट। सुमित आउटे, पाले के गेंद पाले में नहीं आई और आउट। बढ़िया कैच। राज ने अब तक 3 कैच पकड़े हैं और मैदान पे राज चलता हुआ राज का
कह सकते हैं हम इस फील्डर के लिए वाह ताज नहीं वाह राज। कल उस्मान के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग इन्होंने की और गेंद का पीछा कर रही थी। आज राज का गेंद पीछा कर रही है, 3 कैचेस बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लपक लिया और नरसिंह बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं 3 ओवर के बाद 36 4 विकेट के नुकसान पर। क्षितिज 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, सुमित आउटे 2 ओवर 21 और 3 विकेट। ये विकेट टेकर गेंदबाज है, 3 शिकार किया। नरसिंह थोड़ा निराश रहेंगे, एक अच्छा स्ट्रोक किया था डिस्को बाउंड्री की तरफ, उसके बाद में देखे इस गेंद को पुल किया था ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। राज गोटनकर है, तीसरा कैच इन्होंने लपका और अब 3 ओवर के बाद 36 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा कैच पकड़ा है राज गोटनकर ने। देखिए स्कोर बहुत अच्छा है, 12 का करंट रन रेट है। इस रफ्तार से गए तो 72 बनेंगे। ये अमोल मात्रे को बताया जा रहा है, जिस तरह भरत लवार, भरत पतला, अमोल मात्रे, शांतानु कई ऐसे नाम थे जिनकी वजह से ओपन क्रिकेट में इतना रंग है। अमोल मात्रे वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर आणि खूप चांगले कर्णधार देखील आहेत, म्हणजे यावेळेला क्रिकेटची परिभाषा खूप चांगले जाणतात। यावेळेला विक्रोंची जी टीम होती, अर्थात विक्रोंची टीम आता पण आहे, परंतु त्याचे कर्णधार म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष यावेळेला खूप चांगली कामगिरी केली आणि खूप चांगलं विश्लेषण देखील ते करतात। अमोल मात्रे यावेळेला आपल्या स्क्रीनवरती होते। नो डाउट एट ऑल। आरके ट्रॉफी भिवंडी में कई बार आए और छाए। इस बीच अगेन पिकअप शॉट है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, लेकिन गेंद रिकोशेज होती भी बाउंड्री के बाहर 4 रन। बढ़िया पिकअप स्ट्रोक आता हुआ राहुल लोहार के बल्ले से। ये देखिए इन्होंने कह दिया खल्लास। ये देखिए पिकअप स्ट्रोक बहुत जल्दी ही पढ़ लिया था और एफर्ट भी अच्छा था, लेकिन गेंद रिकोशेज होती भी 4 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। श्रीतेज स्पोर्ट्स का 40 रन, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में 32, दूसरे में 21 और अब सिल्वर जुबली रन, वो भी 7 गेंदों में। स्ट्राइक रेट देखिए जबरदस्त उनका। गेंदबाजी कर रहे हैं जुनेद खान। खेल दिया है, सीधा स्ट्रोक है, 6 रन। व्हाट अ शॉट! तीर मानो कमान से निकला और जा मिला आसमान से। ब्रिलियंट बैटिंग शेरू लोहार, जबरदस्त पारी कर रहे अपनी टीम के। देखिए किस तरह से आगे आए, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, आवाज बहुत अच्छी आई टक, और उसके बाद में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अब वी में जब खेलना शुरू करते हैं तो और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट आपने बल्लेबाजी की, ये सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज शेरू लोहार का। क्या बात है, शेरू उनका पेट नेम है, शेरू लवार, राहुल लवार। 46 4 और 8 गेंदों में 31। धीरे धीरे अब योगेश पेंडकर टीम के कैप्टन इंतजार कर रहे हैं अगले मैच का। इस मर्तबा फिर फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। देखिए सुमित डिगले, योगेश पेंडकर ये ऐसे कैप्टन है जो आसानी से मैच छोड़ते नहीं है। लड़ाओ जंगजू कैप्टन। 47 पे पहुंचा है स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे अब अजीत मोहिते, बड़ा नाम है ओपन क्रिकेट दुनिया का। देखना है अनुराग मोहिते हैं। अच्छी गेंद विकेटों में थी, बिल्कुल बैकलिफ को नीचा करके हल्के हाथों से ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। अनुराग का खाता खुला। अफजल मखदूम को दिखाया जा रहा था। देखिए अफजल मखदूम की जो गेंदबाजी रही थी, खासतौर से 2004 से लेके 2009, ये भिवंडी में जब आते थे तो इनकी रफ्तार बहुत जबरदस्त रही थी। 48 रन, 4 विकेट।
इस मरतबा खेला कवर्स में जरूर है लेकिन फील्डर को भेज नहीं पाए, ऑन द राइज खेला था, रन नहीं मिला है। स्कोर है 48, 4 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे हैं जुनैद खान। सामना करेंगे राहुल लोहार, 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज का आखिरी मैच इराकी वॉरियर और इस मैच की विजेता टीम। कल ट्राइडन नवी मुंबई क्वालिफाई हुई। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके शॉर्टम पुल किया है। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 49, विकेटें गिरी है 4। 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल लोहार और अनुराग मोहिते ने 1 रन बनाए। फिलहाल मिसिंग आप देख रहे हैं इस वक्त इराम बशीर जारगर, एज 56, हाइट 5 फीट। अगर ये देखिए चेहरा अगर आपको कहीं पर दिखाई दे तो प्लीज कांटेक्ट 77100625। ये नंबर है, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। इरम बशीर जरगार की तस्वीर बताई जा रही है जो मिसिंग है, और दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट करें आपको अगर नजर आए तो। खेल की शुरुआत होती हुई 5वें ओवर में दूर वाले छोर से गेंदबाजी की कमान दी गई है हाथ में। जीशान खान, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन राहुल लोहार को। देखिए इससे पहले जो मैच आ रहे थे उसमें जीशान खान ने 32 रनों पे बोल्ड किया था राहुल लोहार को, और अब वो 33 पे बच गए बाल बाल। देखिए दो चीज़ें, यहाँ से वो 33 की तरफ तो पहुंच चुके हैं, क्या वो 50 की तरफ जाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। और जिशान खान बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, यहाँ से विकेट लेने की कोशिश करेंगे। तो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है, और अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखते हुए खुद को साबित करने का प्रयास करेंगे। जीशान खान इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग हो रही है। दूसरे के लिए जा रहे हैं, पूरा किया, खतरे को मोल लिया था, रन के लिए रन बन गए। ये देखिए नजीब मुल्ला साहब को दिखाया जा रहा है, रन के लिए हिरन बन गए। वहां पर तेज दौड़ लगा दी 35 पे। देखिए हिरन को उर्दू में गजाला कहते हैं। हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। 61 रन, 4 विकेट। 51 रन, 4 विकेट। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने जब गेंद को रोका था तो तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखिए नजीब मुल्ला के बगल में जो हरीश हैं वो प्रीतेश जोशी बालकुम के जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं उनका सबसे बड़ा फैन है। ये देखिए, ये नजीब मुल्ला का भी बहुत बड़ा फैन है और प्रीतेश जोशी का, और उनके हाथ पे प्रीतेश जोशी का टैटू है। वाह नरेश, छा गए तुम।
जीशान की गेंद इस मरतबा कवर ड्राइव लगाया है, गेंद एक्स्ट्रा कवर में पहुंची है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन। अब ऐसा लग रहा है कि पहला अर्धशतक हम देखने जा रहे हैं। ओपन फॉर्मेट में 14 में 37 बनाए और राहुल लोहार ने। वाह, नरेश के हाथों से केक काटा जा रहा है। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है और गेंद निकल गई है बीच में, 6 रन। देखिए तालियां बज रही है दर्शक दीर्घा में। एक बार फिर पता चल गया कि क्या कमाल का स्ट्रोक था। ये कड़क शॉट था बल्लेबाज का। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। नदीमुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। बल्लेबाज सफल हुए और गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी और हेलीकॉप्टर उड़ गया। दर्शक दीर्घा में लैंड होता हुआ मैग्निफिसेंट बैटिंग। बल्लेबाज शुरू लोहार इस वक्त इंजन गर्म है। सीमी हेलीकॉप्टर शॉट खेला था। देखिए 46 पे आंगने आउट हुए थे, लेकिन क्या नजीब मुल्ला ट्रॉफी ओपन फॉर्मेट में हम पहला अर्धशतक देखने जा रहे हैं? कितने पे खेल रहे लोहार? लोहा गर्म हो चुका है, वार कर रहे हैं वो, और जब लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए। लोहार गर्म हो चुके हैं, लोहा गर्म हो चुका है। फुल टॉस गेंद, पिकअप शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, कमाल की फील्डिंग, जंपिंग एफर्ट। 44 पे पहुंचे राहुल लोहार, 16 गेंदों में कुल स्कोर को पहुंचा दिया, 60 रन 4 विकेट। 5वां ओवर चलता हुआ। अब नजीब मुल्ला फूलों की छांव से दोस्तों की छांव में। अनुराग मोहिते सामना कर रहे हैं। पटकी भी गेंद, हुक कर दिया, कैलकुलेटेड 6। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। एक तरफ अनुराग आप देख रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। और एक्शन रिप्ले में देखे क्या उनका हाथ छोटा था वो देखा जाएगा। बिल्कुल एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच घूम कर खेल दिया। डिस्प्ले लेग बॉडी लाइन के बाहर दिए घुमा के बल्ला घूमा और मैदान झूमा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज शुरू लोहार और टीम के कप्तान अनुराग मोहिते द्वारा। आपका कहना है कि अनुराग मोहिते, आपका कहना है कि चाय से पतीली से चाय ज्यादा गर्म या चाय से पतीली ज्यादा गर्म? चाय पेक्षा किटली ज्यादा गर्म? मैं तो समझ सकता हूँ कि यहाँ से दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही कहानी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब दोनों बल्लेबाजों का इंजन गर्म है, इंजन गर्म है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे देख के आप रंग बदल रहे हैं। वाकई में कोई मैदान में अगर आए, हक तो ये है कि सर उठा के आए। डेथ ओवर में अब गेंदबाजी की कमान जुनैद खान के हाथ में। क्या अर्धशतक होगा? पहली गेंद जड़ में, स्विंगिंग यॉर्कर। लग रहा है कि ये भी आसानी से होने नहीं देंगे। उनको पता है डेथ ओवर है। पहली दूसरी गेंद पे अगर अर्धशतक बना लिया तो बची हुई गेंद पे जुनैद खान पता है उनको कि क्या करेंगे वो।
जुनैद खान 17 गेंदों में 44 रन पे खेल रहे हैं। क्या नजीब मुल्ला ट्रॉफी का ओपन इंडिया क्रिकेट का पहला अर्धशतक खेला है, लगा दिया अर्धशतक, बिग एंड, व्हाट इनिंग, क्या शॉट के खेला है, गेंद को तारामंडल में भेज दिया, अर्धशतक, ओपन इंडिया फॉर्मेट से बिग एंड दीजिए। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि तालियां बजाए। व्हाट अमेजिंग बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर शेरुल लोहार द्वारा। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। शेरुल लोहार ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की है। जुनैद की गेंद आगे बढ़ के ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में, एक रन बना, दूसरे की कॉल है और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, तीसरे अंपायर की मदद। देखना है कि बहुत सुंदर टेलीकास्ट, अल्ट्रा स्लो मोशन में, और बैट्समैन आउट हो गए बैट्समैन। सितोचिले बल्लेबाज 73 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक रही है शेरुल लोहार की, और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। और खास करके सामने जो गेंदबाज है खान साहब के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर, और एक अच्छी इनिंग का खात्मा। आउट हो गए राहुल लोहार। व्हाट इनिंग ही प्लेड, बिग एंड, ये देखिए तालियों की गूंज, 51 रन, फर्स्ट 50 इन ओपन इंडिया फॉर्मेट। शेरुल लोहार जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और अर्धशतक जड़ा है और गेंदों को अच्छा पड़ा है। और कुल मिलाकर अगर देखो तो 51 रनों की एक दमदार पारी। किस तरह से आउट हुए, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद स्टंप की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर ऑनसेट पर फाइनल क्षेत्र में खेलना चाहते थे, इस्तियाक ने कोई गलती नहीं की और बहुत महत्वपूर्ण विकेट। मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, शेरुल लोहार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस मरतबा पुल किया है, कंट्रोल पुल शॉट है, आउटफील्ड में खिलाड़ी, एक रन आता हुआ। टोटल बहुत अच्छा बना है, लेकिन टोटल आज सेफ नहीं है। 74 रन, विकेटों को हम देखें तो 6 विकेटें गिरी, एक गेंद बची है, बैट्समैन है ओमकार पोखले। ओ बढ़िया गेंद और आउट, एलबीडब्ल्यू। तो इस तरह 73 रन बने, 74 की चुनौती रखी है दोस्तों, 74 बने, 75 की चुनौती। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और यूं आए। चेक।
आपके आने से स्टेडियम में बाहर आती है। इरशाद फरमाइएगा। आपके आने से स्टेडियम में बाहर आती है। आपकी वजह से ही टेनिस क्रिकेट की शान बढ़ जाती है। आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही तो सारे थानेकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर नजीब सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ जाओ भाभी साहब, इधर आओ। अभी सब लोग चिल्लाएंगे पार्टी इधर आइए। पार्टी पार्टी कभी भी, जगह आपकी, वक्त आपका। आप आगे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Wish you many, many happy returns of the day from the whole team of Ultimate Event Makers, tenniscricket.in. फिर से एक बार जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नजीबुल्लाह ट्रॉफी 2024 और नजीबुल्लाह साहब का जन्मदिन है, तो शुभकामनाएं देते हुए मैनेजमेंट टीम, इससे पहले टेनिस क्रिकेट .in, हमारे होस्ट, कमेंटेटर, स्कोरर, अल्टीमेट इवेंट मेकर्स पल्लवी नायर, संतोष नानीकर, सिद्दीक बाबे सर, नदीमुल्ला साहब को शुभकामनाएं देते हुए आपने जरूर देखा। और फिलहाल मैच बहुत महत्वपूर्ण है, जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 75 रनों की जरूरत है। ये मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करते हुए सारे बंदे, तो पिछले 2-3 घंटों में अगर देखें तो बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए हमने सारे लोगों को देखा है। दादोजी कोंडे स्टेडियम पर आज बहुत ही अच्छा माहौल,
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजेश सोटे अपने बोरिंग मार्फत तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे अभिषेक आंगने, जिन्होंने पिछले मैच में 46 रनों की एक बहुत ही उम्दा पारी खेली थी। दूसरी तरफ से मंगेश वैती के ऊपर निगाह रहेगी, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अनुभव भी इनके पास, विक्रोंस टीम के लिए बहुत साल से खेलते आए हैं और टारगेट 75 रनों का। पहली गेंद ऑफ के बाहर, गेंद अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, वन बाउंस गेंद बॉडी के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। फॉर्म में खिलाड़ी है, थोड़ा सा ऑफ के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को भाप लिया और बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था। बेटा आपका खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो पावर प्ले चल रहा है, इनफील्ड के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक। एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था। राजेश सोरटे ऑफ के बाद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद, ज्यादा छोटी गेंद थी और वक्त मिला बल्लेबाज अभिषेक आंगने को, तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया था। वाइटिश लंका बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अभिषेक आंगने 4, स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिच चलाना बाकी है। अभिषेक बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो उसको सफल बनाने के लिए हर कोई बंदा जो है 101% देने की कोशिश। ये स्ट्रोक देखे, बेहतरीन टाइमिंग, जल्दी एक बार फिर गेंद को पढ़ लिया था और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, मिड डाउन और मिड ऑफ बिल्कुल दायरे के अंदर है, पीछे कोई नहीं है, तो पावर प्ले में उम्दा बल्लेबाज अभिषेक आंगने द्वारा स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। जवाबी हमला कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज राजेश सोटे के ऊपर हमला किया है। 10 पर नन। रिवर्स स्वीप, गैप में गेंद, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रैवल हो रही है, पीछा करते हुए खिलाड़ी और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन आपको जरूर मिलेंगे। सुंदर बल्लेबाजी, बल्लेबाज अभिषेक आंगने द्वारा चौका, सिक्सर, चौका, अभी तक 3 गेंदों का लेखा जोखा। एक्शन रिप्ले में देखे, बेहतरीन बल्लेबाजी राजेश सोटी के खिलाफ, पोजीशन में आए, रत्नापर तरीके से गेंद को खेल दिया। फ्लाइंग फ्लिपर खिलाड़ी उनको बीट करते हुए गेंद बॉलिंग की तरफ चली गई। यहाँ एक बार फिर रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। फिसलते हुए इनके पैर, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाज को मिली एक बार फिर यहाँ अगर देखे तो बरकत। ये अभी भी देखिए बहुत सारे नौजवान नजीमुल्लाह साहब के साथ एक सेल्फी निकालते हुए फोटोग्राफ निकाल रहे हैं। अभिषेक आंगने ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। स्कोर 14 रन, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार अभिषेक आंगने। ओहो, ऑन साइड पर गेंद दिया, डिप्स के लेग पर बॉडी पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और लिया कैच, आउट। सुंदर कैच, अमित तांबे ने बॉडी लाइन की तरफ अच्छा कैच लगा। इतनी उम्दा बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज अभिषेक आंगने ने। राहुल सातव बॉडी लाइन पर है, तो राहुल ने बहुत अच्छा कैच लगा। स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात थे और एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से कैच लपका गया है। राजेश सोटी की गेंद और ये स्टंप के अंदर थी, उंगलियां फिरते हुए गेंद के ऊपर, गेंद को टिप्स को लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद थे, राहुल सातव, बहुत ही बेहतरीन कैच। विकेट की जरूरत तो वो विकेट मिलता बा सितेश 11 स्पोर्ट एकेडमी टीम के लिए और एक अच्छी पारी, इंपैक्टफुल पारी रही है बल्लेबाज अभिषेक आंगने की। पिछले मैच में 46 रन और इस मैच में अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। अमित भाई हमारे कॉम्बॉस में सामने 2006 से यह सफर शुरू हुआ और फिलहाल गली से स्टेडियम तक हम पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक रेन पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आएंगे और मंगेश वैती के साथ चर्चा हो रही, नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। प्रीतम परब, ये भी एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल राजेश सोटे का ये पहला ओवर आप देख रहे हैं जिसमें पहले 3-4 गेंदों पर हमला हुआ, उसके बाद में विकेट मिला है। नए बैटर मैदान के अंदर प्रीतम परब और एक तरफ अगर देखें तो फील्डिंग के जमावट, फ्लैग स्लिप, एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ अवसर पर 5 खिलाड़ी तैनात। खेलना चाह रहे थे, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी
शानदार कैच, नरसिंह ने लिया कैच और राजेश सोटे ने यहां दूसरा झटका दिया है। प्रीतम आए, प्रीतम चले गए, 2 विकेट चटकाए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। देखिए किसी गेंदबाज के अगर बात करें तो बतौर गेंदबाज आप मैदान के अंदर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अब एक बार फिर खेल रहे हैं तो विकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। निखिल जाधव मैदान के अंदर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। इस ओवर में फिरोज वारिस के लिए अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन पिछली 2 गेंदों की कहानी अगर देखें तो 2 गेंदों पर 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट। रिवर्स में खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और उंगलियां फिरते हुए गेंद के ऊपर अब ब्रेक किया गया था। अगेन द टर्न खेलने की कोशिश, बल्लेबाज लेग ब्रेक के लिए खेल रहे थे, गेंद ऑफ ब्रेक हुई और इसीलिए वो मिस स्ट्रोक था। प्रीतम परब इस गेंद को भाप नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ भी नहीं आती, उनको पढ़ने की जरूरत होती है। उसी तरह से गेंदों को पढ़ने की जरूरत है और मेरे हिसाब से जल्दबाजी की। प्रीतम परब को ये स्ट्रोक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये खराब शॉट था प्रीतम परब का, क्योंकि पहले 3 गेंदों पर रन आए थे और उसके बाद में ये 2 झटके लगे हैं। एक तो अभिषेक आंगने बैक टू द पेवेलियन चले गए, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, थर्ड मैन की तरफ स्टीयर किया गया, सुधीर ने गेंद को उठाया, तब तक 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ अगर देखें तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। 6 ओवर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आज का ये 11वां दिन और 30 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए चाहिए 60 रन। आपके स्क्रीन पर आप देखिए नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 फिरोज वॉरियर्स एक तरफ आप देख रहे हैं तो अभी आंकड़े क्या बता रहे हैं, 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का बहुत ही बेहतरीन आयोजन और एक बार फिर देखें आज का दिन खासम खास है टूर्नामेंट के आयोजन करता नजीमुल्ला साहब के लिए, क्योंकि आज इनका जन्मदिन और सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत सारे केक का कट्टे में गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। अब जाकर गेंदबाजी में राजेश सोटे का ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में 15 रन आए हैं और 2 विकेट भी आए हैं, तो इवेंटफुल ओवर की समाप्ति हुई। राहुल सातव के हाथ में गेंद, मोर्चे पर राहुल सातव ऑलराउंडर खिलाड़ी है और मंगेश बैती के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। निखिल जाधव भी बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन इस मुकाबले में अब 2 विकेट गिरने के बाद फिर उस वारिस के लिए साझेदारी की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सीतेश इलेवन और 1 विकेट की तलाश में रहेंगे। राहुल सातव तैयार अपनी बॉलिंग मार पर, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। ऑफ साइड पर देखिए तो फ्लैंक टिप गली पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 मिनट पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ टाइम के बाहर अच्छी गेंद, जोरदार अपील बिल्कुल राहुल सातव कर रहे। विकेट कीपर की तरफ अगर देखें तो विकेट कीपर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। दत्ता पवार विकेट के पीछे है। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज राहुल सातव अपने बॉलिंग मार पर दोबारा धीरे धीरे जा रहे हैं। ये गेंद देखिए राउंड विकेट एंगल क्रिएट किया और काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी, आंखों से दूर। इस बार भी कट करने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद उछाल में रहा। राउंड विकेट गेंदबाजी करना बिल्कुल शमी से आप सीख सकते हैं। शमी मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए हमेशा राउंड विकेट बहुत अच्छे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया है, लेकिन कंट्रोल ज्यादा चाहिए, कंट्रोल ज्यादा चाहिए। राउंड विकेट जब आप गेंदबाजी करें तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इस बार हवा में गेंद, कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत दूर है, कम से कम 1 रन लेने का मौका मिलेगा। सिंगल के साथ निखिल जाधव का खाता खुला। निखिल प्लेइंग ऑन 1 स्कोर 16 प्लस 2 विकेट। निखिल जाधव 2 पर बल्लेबाजी करे। मंगेश बैती ने अपना खाता नहीं खुला। पहले मैच में आगाज बहुत ही लाजवाब किया था मंगेश बैती ने, दूसरे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तीसरे मुकाबले में एक बार फिर आपको मौका मिला है खुद को साबित करने के लिए। सामने राहुल सातव तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। मंगेश बैती इसीलिए जाने जाते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, तकनीक बहुत अच्छी है। और देखिए किस तरह से पोजीशन में आते हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था और बल्ले के बीचों बीच, ज्यादा बैकलिप का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। मिड विकेट पर नरसिंह ने पूरी कोशिश की, एक बार फिर गोता लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चलेगी। बेहतरीन टाइमिंग मंगेश बैती का। इस प्लेइंग ऑन 6 स्कोर 22 पर 2, 75 रनों का लक्ष्य आपके सामने। रिवर्स स्वीप, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, कड़क शॉट,
पहले पुल किया, उसके बाद में रचनात्मक तरीके से गेंद को एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ाया है, बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद। पिछले 2 गेंदों की अगर कहानी देखें तो 1 डजन रन आए हैं, और ये भी एक तरीका देखें, खेलने का तरीका, आत्मविश्वास देखिए, रचनात्मक बल्लेबाजी, कलात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर मंगेश वैती द्वारा। स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर, 28 for loss of 2 wicket. Excellent batting by Mangesh Vaiti. Is playing one ball. Score was 28 for 2. सितेश 11 बहुत महत्वपूर्ण ओवर डालते हुए गेंदबाज राहुल सातव। इसी का मैंने जिक्र किया था, जब आप राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए। एक भी छोटी सी गलती करते तो बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ते हैं, और वही किया मंगेश ने। एक छोटी गेंद थी, बैकफुट पर पुल किया, उसके बाद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर वाली लाइन। अच्छी गेंद है, यहाँ पर बिल्कुल खिलाड़ी है गली के क्षेत्र में, और 1 रन लेने का मौका मिलेगा। और इसी सिंगल के साथ 2 ओवर की कहानी समाप्त। 29, 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 24 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा बैटल मैदान जंग में बिल्कुल चल रहा है दादोजी कोंडे स्टेडियम पर। आज का 11वां दिन, 24 गेंदे 46। ये आंकड़े देखे एक बार फिर। इंपॉर्टेंट मैच, अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। फिरोज वॉरियर्स कांदोली बनाम सितिश स्पोर्ट, और दोनों तगड़ी टीमें, दावेदार टीमें हैं। और इस मुकाबले की बात करें, डू और डाई वाला मैच है। 24 गेंदे 46। यहां से एक एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी। गेंदबाजी में अब क्या परिवर्तन होगा, या एक बार फिर मौका मिलेगा गेंदबाज राजेश सोटी को। राजेश सोटी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 29, 2 विकेट के नुकसान पर। फिरोज वॉरियर्स, मंगेश वैती 13 पर के दर 3 गेंदों का सामना किया। निखिल जाधव ने 2 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट मंगेश वैती का बहुत अच्छा है। निखिल जाधव को थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, खास करके आपका स्ट्राइक रेट, या स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से सितेश 11 1 विकेट के तलाश में है। इसीलिए देखिए यहाँ बिल्कुल आपको बुलाया गया है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है, उसमें से 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। दत्ता पवार विकेट के पीछे, राजेश सट्टे अपने बोरिक मार पर तैयार। ओ पहली गेंद स्टंप के अंदर बिल्कुल ब्रॉकन में डालने की कोशिश की गई है, और गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया है। 1 रन लेने का मौका मंगेश वैती पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर 14 पर 4 गेंदों का सामना किया। स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन आयोजन प्रतियोगिता का नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। ऑन साइड पर देखें तो लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर है। निखिल जाधव 2 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंद और खराब शॉट बल्लेबाज का। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था। अब मंगेश वैती निखिल के साथ चर्चा कर रहे हैं। काबिल थे निखिल के पास, लेकिन राजेश चोटे की बात करें तो पुराना चावल है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव उनके पास, रक्षक हरिशन कर रहे हैं। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में गेंद, और राहुल सातव ने दोबारा एफर्ट लगाया था, छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे लगा कि लेट रिएक्ट हुए, क्योंकि ये कैच जो है ना, 2 खिलाड़ी वहां रोहन है, रोहन खरात बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद। दूसरी तरफ देखें तो स्क्वायर लेग पर राहुल सातव है, तो लेट रिएक्ट। देखिए एक एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था, बाउंड्री लाइन पर गेंद हवा में थी, छलांग लगा के एक बार हो एफर्ट देखिए, कमिटमेंट देखिए। दोबारा देखिए एक बार फिर, थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में आए बल्लेबाज, ऑन साइड पर हवा में गेंद, और यहाँ बहुत ही अच्छा, थोड़ा जल्दी रिएक्ट होते तो बिल्कुल बात बनती। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, और वाइट बॉल का इशारा। राजेश सोटी के हाथ सर पर चले गए, इसका मतलब है कि इनको पता है कि वो इन्होंने गलती की है। 21 गेंदे 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बार आड़े वाले से गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। आज का दिन शेरुल लोहार के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, बल्लेबाजी कमाल की है। अब 21 गेंदों में 42, आंकड़े बिल्कुल बदल रहे हैं, क्रिकेट का खेल का रंग बदल रहा है। अच्छा खेल बिल्कुल दर्शकों को देखने का मौका मिला। 34 2 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदे 41 रनों की जरूरत है। तो ये मैच दोनों के पास है, सितेश 11 और फिरोज वारिस के बीच एक तगड़ा संघर्ष आप देख रहे हैं। प्रभु गेंदबाज के तौर पर, गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर तैयार, राजेश सोटी 34 for loss of 2 wicket।
ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। रोहन खरात बॉडी लाइन पर मौजूद है मिड विकेट क्षेत्र में और 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ तीसरे ओवर में स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदें और 40 रनों की जरूरत है। 19 गेंदों का खेल है और ये आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। निखिल यादव ऑन स्ट्राइक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या ये अच्छा स्ट्रोक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रोक, कड़क शॉट, चाबुक शॉट। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेला गया है। यहां भागने की जरूरत नहीं है, मारा कम घसीटा ज्यादा, क्योंकि टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा अगर देखिएगा अंदर आ रही है बाहर, एक बार फिर देखिए ये बाहर निकल रही है और इस गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया। अच्छा संपर्क निखिल यादव का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। दोबारा देखिए एक बार फिर, शॉट तो बहुत कड़क है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी, जहां दर्शक दीर्घा में दर्शक है, नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 का लुत्फ उठाते हुए। अब समीकरण आपको बताऊंगा। 18 गेंदे 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फिरोज वॉरियर्स 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब फिलहाल ये आंकड़े देखिए, 18 गेंदे 34 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार मंगेश वैती 15 पर गेंद 5 गेंदों का सामना किया। तीसरे विकेट के लिए एक साझेदारी जो बिल्कुल बन रही है। निखिल यादव शुरुआत अगर देखें तो अच्छी नहीं थी, संघर्ष करे थे, रनों के लिए जूझना पड़ रहा था, लेकिन एक सिक्सर से एक बार फिर उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। 18 गेंदे 34 रनों की जरूरत है। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं और अभी तक अगर देखें तो बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने का मौका मिला। राहुल लोहार ने 32 रन बनाए थे, उसके बाद में 21। पिछला मैच भी बहुत अच्छा रहा। रोहन खरात का जो बॉलिंग एनालिसिस बहुत ही बढ़िया रहा है। 2 ओवर 8 रन और 3 विकेट। विवेक शिलार ने कल प्रोवाइड किया था 5 विकेट 5 पर। उसके बाद में अंकुर सिंह ने एक तो ऐसी गेंद डाली थी जिसमें गेंद अंदर डंडी बाहर, मतलब स्टंप टूटा था। उसके बाद में कल एक बार फिर उस्मान का बल्ला भी टूटा था। इस बार गेंद को अनसेट पर खेलते हुए जिसके लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। नरसिंह ने गेंद को उठाया है, 1 रन लेने का मौका और अब जाकर 17 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। एक अच्छा मैच, डू और डाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का समय आ गया है। स्ट्राइक रेट पर निखिल यादव 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, अनुराग मोहिते का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वे टीम के कप्तान हैं। 17 गेंदे 33। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज निखिल यादव के लिए। और सुधीर सावले बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद और जोरदार अपील। उसका असर आप देख रहे हैं बिल्कुल इस वक्त। शबनम कहा जाता है उसको। एक बार देखिए आपके स्क्रीन पर उसका असर है। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है। अनुराग मोहिते अपनी जगह पर दोबारा जाते हुए उंगलियां फिरते, गेंद को अंदर लेके आते, गेंद को बाहर की तरफ लेके जाते हैं और ये कंट्रोल बहुत अच्छा होता है सुधीर सावले का। सीजन अच्छा रहा है इस खिलाड़ी के लिए। ऑफ टिप के बाहर गेंद थी, इंतजार किया, गेंद को खेलते पॉइंट क्षेत्र में, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। अब जाकर देखें तो आपके पास इस ओवर की 3 गेंदें, 15 गेंदों का खेल, 32 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। रोचकता बिल्कुल बरकरार है इस मुकाबले में, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मंगेश वैती 16 पर खेल रहे हैं। दादूजी कुंडे स्टेडियम पर आने वाले मैचेस में बिल्कुल क्या ओस का असर होगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। श्री लोहार ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की उसी अंदाज से आज मंगेश वैती को बल्लेबाजी करनी है। 7 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है। 7 गेंदें और 16 रन अभी तक बनाए मंगेश वैती ने। इंपॉर्टेंट पारी के 14 गेंदें 32 रनों की जरूरत।
अच्छा स्ट्रोक जरूर खेल दिया है, डिप्स खेलने बाउंड्री की तरफ गेंद आई है और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोका गया। 13 गेंदे 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 44 2 विकेट के नुकसान पर फिरोज वॉरियर्स। मंगेश वैती जिनके ऊपर रहेगा पूरा दारोमदार, लेकिन इतना ठंडा माहौल है तो आज आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया गया था, बल्लेबाज भी देखे तो थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर आए थे, शफल हुए थे और गेंद को खेल दिया था। डिप्स को बाउंड्री की तरफ नरसिंह ने गेंद को उठाया, लेकिन एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 13 गेंद 31, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। 44 2 विकेट के नुकसान पर निखिल यादव ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर कड़क शॉट। ठंडा माहौल है लेकिन निखिल यादव का जो बल्ला बिल्कुल गर्म है इस वक्त। बेहतरीन बल्लेबाजी, स्लॉक स्विप किया था ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ग्रेट बैटिंग। 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मंगेश वैती जब शॉट के अंदर तो थोड़ा गिर गए थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनके लिए। तो अब बारह गेंदे और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। फिरोज वॉरियर और क्षितिज 11 के बीच आज के दिन का संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। आती है, टकरा कर लौट जाती है, सागर की लहरें बार बार यही दोहराती है, आखिरकार काट देती है मजबूत चट्टानों को, कोशिश रंग लाती है, ये हमें बताती है। 12 गेंदे 25, एक जबरदस्त मैच। अगर आप यहाँ मुकाबला जीतते हैं तो एक और बड़ा मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए बिल्कुल है और रोहन खरात को बुलाया गया है। निर्णायक ओवर है, यहाँ से ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये बताने वाला ओवर है और आपके पास अभी भी अच्छा बैंक बैलेंस है सिद्ध चेरीवाल के पास। 12 गेंदे 25। दूसरी तरफ अगर देखें तो फिरोज वॉरियर्स के पास मंगेश वैती और निखिल यादव दोनों सेट बल्लेबाज हैं। तो सेट बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना यह भी चैलेंज होता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है चैलेंज तो रहेगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक पर चैलेंज लिखा है, दूसरी पर एक बहुत बड़ा अवसर लिखा हुआ है। 75 रनों का टारगेट। निखिल यादव ने अभी तक उम्दा बल्लेबाजी की, 11 गेंद में 18। अब हमें गेंद ऊपर चली गई है, अनुराग गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो जाएगा? बिल्कुल आसान कैच। रोहन खरात टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून पोहोचलाय घराघरात आणि आता स्थान निर्माण करतोय प्रत्येकाच्या हृदयात। इथे बघा आता काय घडलं होतं मैदानावरती, 5व्या षटकाचा खेळ आणि मंगेश वैती सारखा हुकमाचा एक कसलेला फलंदाज, यावेळेला टप्पापर्यंत चेंडू लेग ब्रेक होतोय आणि चेंडूच्या पिच पर्यंत मंगेश वैती पोहोचला नाही आणि परिणामता काय घडलं, अनुराग मोहितेनं कोणती चूक केली नाहीये। मंगेश वैती कर्णधार आहे फिरोज वॉरियर्सचा, तर क्षितिज येलोचा कर्णधार आहे अनुराग मोहिते। यावेळेला अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी। 11 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है। नए बैटर राज कोटनकर को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए और एक तरफ निखिल यादव सेट बल्लेबाज है। एक मोमेंटम था बल्लेबाजों के पास क्योंकि अच्छी साझेदारी बनी थी तीसरे विकेट के लिए मंगेश वैती और निखिल यादव के बीच। तब लग रहा था क्रिकेट का खेल बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हमेशा मिट्टी के विकेट पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है रोहन खरात ने और निखर कर आए हैं। और अब जाकर उनके पिटारे से क्या क्या आएगा, उनके तर्क से क्या आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। राज कोटनकर के ऊपर भी सबकी निगाहें हैं। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का लक्ष्य, 25 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए फिरोज वॉरियर्स को। रोहन की अगली गेंद, ओहो टप्पा खाने के बाद थोड़ा अगर देखें तो लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेम अंदर या बाहर, लेकिन वाइड बॉल का इशारा, बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा। ये गेंद बिल्कुल ऑफ ब्रेक थी, पहले लेग ब्रेक, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी।
फ्लाइटेड गेंद है, उसके ऊपर प्रहार किया गया। राज गौठनकर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। अब जाकर देखिए उम्मीदों को जगाने वाला एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आया। आगे गेंद थी, एक बार फिर फ्लाइट देने में एक बार फिर कोई दिक्कत इनके लिए नहीं है, लेकिन जब ज्यादा आगे गेंदबाजी करेंगे तो परेशानी हो सकती है। बेहतरीन बल्लेबाजी राज कोटनकर की। अब 10 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर, उसका असर कितना होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। अपने बोरिंग पार पर गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करने के लिए रोहन करा सामना करेंगे राज कोटनकर। स्कोर अगर देखें तो 57, 3 विकेट के नुकसान पर फिरोज वॉरियर्स। डू और डा वाला मैच, करो ये मरो वाला मैच है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। इस बार बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था बल्लेबाज राज कोटनकर द्वारा। 9 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। 57, 3 विकेट के नुकसान पर फिरोज वॉरियर्स सामना करेंगे राज कोटनकर। इस प्लेइंग ऑन 6। इस बार छोटी गेंद पर प्रहार करने का प्रयास किया गया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा कैच शानदार तरीके से लिए लपका गया है। विकेट आएगा तो वो एक बार फिर प्रेशर बनेगा। अभी ताबे बाउंड्री पर मौजूद थे और रात थोड़ा सा निराशा है। देखिए यहाँ अभी लेग ब्रेक नहीं है, ऑफ ब्रेक नहीं है। अब देखिए तेज करने का प्रयास, तेज गेंद थी और कदों का इस्तेमाल बिल्कुल हुआ था, मौका था। एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक में एक बीच में से वो तेज रफ्तार की गेंद आई तो बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उसका फायदा इस वक्त रोहन को मिलता। अच्छा मिश्रण कर रहे हैं। 8 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। 57, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 8 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। अनुराग अपने बॉलर के साथ चर्चा कर रहे हैं। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इश्तियाक, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी, मुझे अभी भी याद है क्या वो लम्हा था जब राहुल जोगड़िया गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो इस जहांबाज खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े थे। 6 छक्के जड़े थे, अनबिलीवेबल बैटिंग की थी और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये सारा होने वाला है, क्योंकि राहुल जोगड़े को आप एक बार फिर जानते हैं, बहुत अच्छा लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक अच्छा मिश्रण करते हैं। उनके खिलाफ इश्तियाक ने दे धनाधन बल्लेबाजी की थी और एक नहीं 6 छक्के जड़े थे। अभी इतने ज्यादा छक्के जड़ने की जरूरत नहीं है और सामने रोहन खरात जैसे एक अच्छे गेंदबाज है तो उनके खिलाफ जाके आपको रन बनाने हैं। 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है लेकिन रोहन खरात के पास ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक दोनों हैं, तो क्या अब क्या इस्तेमाल करेंगे, इनके तर्कस से कौन सा तीर आने वाला वो देखना बहुत जरूरी। 57, 4 विकेट के नुकसान पर इश्तियाक इस पक्ष स्ट्राइक रेन पर। 8 गेंदें 18 रनों की जरूरत। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और यह शानदार फील्डिंग। एक रन बचाना बहुत जरूरी। सुंदर फील्डिंग इस पर बाउंड्री लाइन पर नरसिंह पालम पल्ले और शेरू के हाथ सर पर, लेकिन उच्च कोटि की फील्डिंग। उसके बाद में इन्होंने सेकंड किया है। ये देखिए ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, फॉलो किया गया था बल्लेबाज को गेंदबाज ने और उसके बाद में ये उच्च कोटि की फील्डिंग हो रही है। नरसिंह, वाह वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वहां मिलती है राह। मैदान के अंदर कमाल हो रहा है। अब जाकर बल्लेबाज निखिल को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर अपने बोरिंग मार्क पर गेंदबाजी करने, गेंदबाज तैयार है। रोहन करात, दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भी एक खिचड़ी पक रही है, योजना बन रही है, प्लान बन रहा है। अब जाकर क्या मंत्रा बताया इश्तियाक ने, निखिल को यह देखना बहुत जरूरी है। 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए रुक गए। रोहन खरात रुक गए हैं, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, रोचकता बिल्कुल बरकरार इस मुकाबले में। उड़ाया आसमान की तरफ, इस बार भागने की जरूरत नहीं है। निखिल का यह शानदार दमदार छक्का, यह तीसरा छक्का है, तालियां बज रही है। एक्सीलेंट बैटिंग निखिल यादव। शुरुआत बहुत खराब थी, संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद में देखे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। एक्शन रिप्ले देखे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और लेग ब्रेक गेंद थी, फिर भी अगर देखे तो यह कमाल का स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच। उसके बाद में कैच लपकने का प्रयास किया गया था और कैच छूटने के बाद देखे क्या रिएक्शन है। 6 गेंदें 11 रनों की जरूरत। नरेश, प्रीतेश जोशी के बहुत बड़े फैन जिन्होंने कैच लपकने की कोशिश की थी बाउंड्री लाइन पर। 6 गेंदें 11 रनों के साथ मुकाबला जीतने के लिए और ये एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर है। फिरोज वॉरियर्स और सिद्ध 11 के बीच आखिरी 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। सामना करेंगे इश्तियाक शेख और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है।
सुधीर के हाथ में गेंद, सुधीर सावले अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जा रहे हैं। अनुराग मोहिती ने हमेशा सुधीर सावले के ऊपर विश्वास जताया है, एक तरफ मंगेश मोहिती ने इश्तियाक के ऊपर विश्वास जताया, लेकिन निखिल यादव को थोड़ा ऊपर भेजने का फायदा भी हुआ। 12 गेंद में 24। शुरुआत अगर देखें तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन एक गेंद को इन्होंने बल्ले के बीचों बीच खेला और उसके बाद में 3 शानदार दमदार स्ट्रोक आए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पिक्चर बिल्कुल सुपर हिट है। नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। अभी आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि 2:46 का समय हो गया है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करने का तैयार इश्तियाक शेख, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निखिल यादव ने 24 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। सुधीर सावले अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ टॉप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। शशि साठव वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। पहली गेंद पर मिस्टर रिस्ट आया है और फिलहाल अब चैलेंज किया गया, रिव्यू लिया गया है। टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे। और नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024, ये देखिए बल्लेबाज सफल हुए थे, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टॉप के बाहर रखा गया था। टीवी अंपायर देखेंगे ये सारी चीजें। बॉलर ने चैलेंज किया था वाइट बॉल जो एक बार फिर दी गई उसके लिए, और शशि साठव ने वाइट बॉल का इशारा किया था। तो अब जाकर देखिए क्या होता है। डिसीजन पेंडिंग है। कीप रोलिंग की आवाज बिल्कुल आएगी। वाइट बॉल का इशारा ऑन फील्ड अंपायर का था। टीवी अंपायर ने बिल्कुल यहाँ सहमति जताई है और वाइट बॉल का इशारा। 4 विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदल रहे, खेल का रंग बदल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। सुधीर सावले अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इश्तियाक शेख 1 और निखिल यादव 24 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अगली गेंद लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे सुधीर सावले। इस बार गेंद फाइनल क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश। 1 रन मुकम्मल किया है। निखिल यादव जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। अदिल शिंदे साहब को आप इस वक्त देख रहे हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम। एक कैच छूटा था निखिल यादव का और उसके बाद में इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की है, जीवन दान मिला था और बाकी हमेशा बहादुरों का साथ देता है। 5 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। यहाँ से आने वाली एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है और जीत की उम्मीद है, एक तरफ हार का डर है और संघर्ष मैदान के अंदर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुधीर सावले। ऑफ साइड पर फ्लैंक स्लिप, एक गली पॉइंट, कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है सुधीर सावले। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं? क्या खतरा हो सकता है? ये आना बाकी है क्योंकि नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 पिक्चर है सुपर हिट और इस मुकाबले में कहानी में आया ट्विस्ट। टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे और अब एक बार फिर मजा क्या, ये क्रुशल देखिए, एक बार फिर वो क्या आपने गलती की वो देखा जाएगा। करीबी मामला है, टच एंड गो वाली बात है। कीप रोलिंग। दोबारा एक बार फिर देखे टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं मैदान के अंदर। एक रोचक मुकाबला चल रहा है, पैसा वसूल मैच, इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। अब टीवी अंपायर का क्या सिग्नल आएगा? निखिल यादव ने शानदार बल्लेबाजी बिल्कुल की है, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है। क्या मुकाबला है। आज का दिन अगर देखें तो बिल्कुल यादगार रहा है। 66 4 विकेट के नुकसान पर है। ये डिसीजन आने के बाद बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है और किसमें कितना दम है। और मैदान के अंदर दम कम लगाने का समय आ गया है और डिसीजन पेंडिंग है, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। ये करीबी मामला, बिल्कुल करीबी मामला है। नीट एंड क्लीन पिक्चर टेनिस क्रिकेट .in अब पर बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। आउट या नॉट आउट?
OUT आउट। निखिल को पता था, वो बिल्कुल देखिए स्टंप के पास बिल्कुल जब जो सर्कल की तरफ आए थे। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और क्या मुकाबला चल रहा है। 4 गेंदे 8, नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। प्रीति जोशी, हमारी निगाहें नरेश के ऊपर भी रहेगी क्योंकि प्रीति जोशी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अगर देखें, निखिल ने शानदार बल्लेबाजी की, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्योंकि शुरुआत आपकी अच्छी नहीं थी। 3 अच्छे स्ट्रोक इनके बल्ले से क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ इन्होंने रन बनाए हैं। सुधीर साहब ने अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज बिल्कुल इस वक्त तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। प्रीति जोशी एक एंड पर, मौका मिलेगा बल्लेबाज इस्तेक्षक को जो 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद को बदलने वाले हैं। क्लीन बोल्ड, आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया। सुधीर साबले, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, स्टेक बैक टू द पेवेलियन, सटीक यॉर्कर, गेंदबाज कारगर, गेंदबाज असरदार, सरदार, इनका खेल दमदार। अब जाकर देखे, चाहता सफल हुए थे, गेंद बल्ले को लगी और उसके साथ स्टंप के ऊपर जाते भी। ब्रोकल में गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, और अब जाकर कहानी में ट्विस्ट, मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। 75 रनों का टारगेट, आपके पास 3 गेंदे हैं और जीतने के लिए अगर देखें तो 8 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर, और इंतजार की भी अजीब हद होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है ना आंखें। अब जाकर इस मुकाबले में देखें, या इतने एक बार फिर जाना है मैदान के अंदर, और एक बार फिर इतना समय हो गया है, कोई मैदान के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। गजब का खेल मैदान के अंदर हो रहा है। कृष्णा सातपुते इस वक्त हमारे कम बॉक्स में पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं एक बहुत बड़े मैच का। लेकिन इस वक्त रोचक मुकाबला मैदान के अंदर, नाखून जमाने वाला मैच है ये। आने वाली 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं। ऐश्वर्य सूर्य को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए, लेदर बॉल का अनुभव उनके पास। अब जाकर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुधीर गेंदबाजी कर रहे हैं। गति परिवर्तन किया गया था, 1 रन आपको जरूर मिलेगा। जोरदार अपील सुधीर साबले मांग रहे हैं। लेग बाइक का इशारा शशि साटम ने किया है। ये आपके समाप्त, ये बताते हुए शशि साटम, छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब आप उनको खुला रखते हैं। अब 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए अगर देखें तो 7 रनों की जरूरत है। 68 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक सुधीर साबले का ओवर अच्छा साबित हो रहा है। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन किया गया था, या एक बार फिर सटीक यॉर्कर की तरफ चले गए थे, लेकिन क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अभी तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। 2 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर बिल्कुल एक रोचक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। 2 गेंदे 7, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। प्रीति जोशी, ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गति परिवर्तन किया गया, जोरदार अपील, इस बार उंगली खड़ी होती भी। यहां खतरा भी हो सकता है, और अंपायर का क्या फैसला वो भी देखना बहुत जरूरी है। इवेंटफुल ओवर है मैदान के अंदर, अब अंपायर का इशारा वो भी देखना बहुत जरूरी। एक तरफ तो उंगली खड़ी हो चुकी थी, उसके बाद में अंपायर चर्चा कर रहे हैं, दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं। शशि साटम टीवी अंपायर की तरफ चले गए, वो देखना बहुत जरूरी है। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है सुधीर साबले की। क्या गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ, वो देखा जाएगा इस वक्त। और
चारों ओर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। टिक 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 टिक, वो आवाज बिल्कुल आ रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। मुकाबला अगर टाई हुआ तो बिल्कुल सुपर ओवर हो सकता है, तो अभी भी और एक विकल्प आपके पास बचा हुआ है। और 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी फिलहाल बल्लेबाज मैदान के अंदर रुके हुए प्रीतेश जोशी। अंपायर, टीवी अंपायर और अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर के बीच अभी भी चर्चा जारी है। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। नजीबुल्लाह ट्रॉफी 2024 जीतने की बात तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। और ये क्या कमाल का मैच, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर। इट्स फेयर डिलीवरी, तो प्रीतेश जोशी को मैदान के बाहर आना पड़ेगा, नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर जाना पड़ेगा। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर चलिए। इट्स फेयर डिलीवरी। जिशान नए बैटर मैदान के अंदर, एक गेंद और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था मैदान के अंदर, और अगर यहां एक बड़ा स्ट्रोक आता है, सिक्सर आता है, तो सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा। और विकेट के सामने पाए गए प्रीतेश जोशी ऑन से पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेलना चाह रहे थे। एक गेंद 7 रन की जरूरत है, सारी चीजें देखी गई है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, टीवी अंपायर का इशारा आया। मैदान के अंदर एक गेंद 7 चाहिए, अगर 6 बनते हैं तो ये मैच सुपर से ऊपर बन सकता है, सुपर से ऊपर वाला हो सकता है। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर। टीवी अंपायर ने वो 2 चीजें देखी, एक वो सामने एक बार फिर विकेट के सामने पाए गए हैं या नहीं वो देखा गया, उसके बाद में वो नो बॉल भी देखा गया। इट्स अ फेयर डिलीवरी, अंपायर का डिसीजन था। और उसके बाद में आप देखें सुधीर सामने अपने बॉलिंग पार पर तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइकर पर जिशान खान। क्या एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज जिशान तैयार, स्ट्राइकर पर सुधीर सामने अपने बॉलिंग पार पर तैयार है। फ्लैग स्लिपर खिलाड़ी, एक पॉइंट कवर, एक लॉन्ग अपर खिलाड़ी तैनात है। एक बड़े स्ट्रोक की मांग हो रही है बल्लेबाज के तौर पर, एक अच्छी गेंद गेंदबाज को डालनी है। एक गेंद 7 की जरूरत इस ओवर की अगली गेंद। सुधीर साबले इस गेंद को खेल दिया बहुत बढ़िया तरीके से, लॉन्ग बॉलिंग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है सुधीर साबले। ये दिखने में है बोले, मैदान के अंदर उतरते हैं तो बरसाते आंख के गोले। इनका खेल देखे, इनकी गेंदबाजी देखे सबका दिल डोले। सुधीर साबले बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है इस ओवर में, शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और फिरोज वारियस कांदिवली बनाम सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी, करोया मरुवाला मैच था जिसमें सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन अगला मुकाबला और एक जबरदस्त मैच, रोचक मुकाबला होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। तो चलिए, कृष्णा सातपुती अभी भी इंतजार कर रहे, एजाज कुरैशी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरी मुकाबला, आखिरी पड़ाव। इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच राहुल लोहार, जिन्होंने किया हर बार पलटवार। शेरू लोहार जिनके बल्ले से अर्धशतक आया था, 50 रन इन्होंने बनाए थे। शेरू लोहार, राहुल लोहार।